Hello student, today I'm teaching you entrepreneurship for class 12 and this is your chapter resource mobilization. So in this chapter I already covered many topics like stock exchange, function, features of stock exchange, then financial institutions, types of financial, specialized financial institutions has divided into two parts. One is your national level and second one is your state level. So in national level we have six parts: IDBI, SIDBI, IFCI, ICICI, NABARD, and IIBI. And state level has three main parts. One is SFC, TFCI, SIDC. Okay. So in latest previous video, I already explained you about IDBI, their objectives, their functions, and next Small Industrial Development Bank of India, this is SIDBI. About objectives and function also I explained in previous video. Now in this I'll explain Industrial Finance Corporation of India, IFCI. So IFCI was established as a statutory corporation on 1st July 1948 by a special act passed in the parliament. तो जो IFCI है वो एक स्टेटरी कॉर्पोरेशन है जो जुलाई 1948 में स्पेशल एक्ट पार्लियामेंट के थ्रू 1984 में स्टैब्लिश हुई. इट वाज कन्वर्टेड इनटू अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी ऑन जुलाई 1st इन 1993. ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट हुई. पब्लिक लिमिटेड कंपनी का मीन्स है कि ये वो कंसर्न है जो पीपल के लिविंग स्टैंडर्ड को, पीपल को क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए helpful होती है, which is run by the government side only. The rule and regulations be meant by the government bodies only. So its main objective is to provide medium and long-term credit to eligible industrial enterprise in corporate sectors of the economy, particularly to those industries to which banking facilities are not available. So especially ये जो corporations है ये मीडियम साइज और लॉन्ग टर्म के जो क्रेडिट प्रोवाइड किया जाता है एंटरप्राइजेस को उनकी इकोनॉमी को बूम अप करने के लिए. सो एंड फॉर प्रोवाइडिंग बैंकिंग फैसिलिटीज एंड अदर फैसिलिटीज, दैट्स व्हाई दिस कॉर्पोरेशन हैज मेंट. नाउ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशंस of India are: the primary role of IFCI is to provide direct financial assistance on medium and long term basis to industrial project in the corporate and cooperative sector. तो जो कॉर्पोरेट सेक्टर हैं या कॉर्पोरेट सेक्टर हैं इन पर्टिकुलर सेक्टर्स को मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के फाइनेंस प्रोवाइड करना IFCI का मेन वर्क है. द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉर्पोरेशन आर stated below: to provide long and medium term credit to industrial concerns engaged in manufacturing, mining, shipping and electricity generation and distribution. Okay, so जो long term के fund raise किए, long term का जो loan provide किया जाता है medium term और industrial concern को, किसके लिए? For manufacturing के लिए, mining के लिए, shipping के लिए, electricity generate करने के लिए, ठीक है, goods का distribution करने के लिए. Next, the period of credit can be as long as 25 years and should not exceed that period. तो इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 25 ईयर्स का है, इससे ज़्यादा का वो एक्सीड नहीं हो सकता. ठीक है. द लिमिटेशन इज ऑफ 25 ईयर्स. फाइनल लिमिटेशन: द ग्रांट क्रेडिट टू अ सिंगल कंसर्न अप टू अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ₹1 करोड़. इसमें जो सिंगल कंसर्न को ग्रांट दिया जाता है, क्रेडिट दिया जाता है, वो मैक्सिमम 1 करोड़ रुपीज़ है. दिस लिमिट कैन बी एक्सीडेड विद द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस. अगर द कंपनी नीडेड मोर क्रेडिट, मोर फंड, सो इन दैट कंडीशन द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट मस्ट बी टेकन एंड द सिचुएशन मस्ट बी सर्टेन सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं. उस कंडीशन में परमिशन आप गवर्नमेंट का ले and IFCI would provide credit facilities to the medium and long term industries. Then guarantee loans and deferred payment. ठीक है. So whenever you take the loan, the guarantee must be provided by the concern. Next, underwrite and directly subscribe to share and debentures issued by the company. IFCI
हेल्प प्रोवाइड करता है कि जो ऐसी कंसर्न होती है न्यूली इस्टेब्लिश्ड होती हैं, ये अपने शेयर्स को और डिबेंचर्स को अंडरराइटर्स के थ्रू डायरेक्टली इन्वेस्टर्स तक पहुंचा सकती हैं, ठीक है, वो भी IFCI हेल्प करता है. Assist in setting up new projects as well as modernization of existing industrial concern in medium and large scale sector. ठीक है, तो सेट न्यू प्रोजेक्ट सेट किए जाते हैं थ्रू IFCI ताकि जो कंसर्न्स हैं मीडियम टर्म की या लॉन्ग टर्म की जो इंडस्ट्रीज हैं वो मॉडर्नाइज हो, ठीक है, उनका इंडस्ट्रियल सेक्टर बढ़े. असिस्ट प्रोजेक्ट अंडर कोऑपरेटिव एंड इन अ बैकवर्ड एरियाज, और स्पेशली वो इंडस्ट्री जो बैकवर्ड एरियाज में, हिली एरियाज में और रूरल एरियाज में सिचुएटेड है, ठीक है, उन एरियाज को they not developing for their interest only, but they are providing employment opportunities also, so that's why IFCI provide financial support to them. Now these were the sub objectives. Now we will study functions. So main function of IFCI are as under granting loans and advance for the establishment, expansion, diversification and modernization of industries in corporate and cooperative sectors. तो जो IFCI हैं ये ऐसी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस होती हैं जो स्पेशली स्टैब्लिश है एडवांसमेंट करने के लिए, डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए, मॉडर्नाइज करने के लिए स्मॉल कंसर्न्स को, जो कि मीडियम साइज और लॉन्ग टर्म के बेसिस पे रन कर रही हैं. फिर है गारंटिंग लोन्स रेज बाय इंडस्ट्रियल कंसर्न इन द कैपिटल मार्केट बोथ इन रुपीज एंड फॉरेन करेंसीज, और जो इंडस्ट्रियल कंसर्न है उनको दोनों ही करेंसी में सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सकता है, रुपीस में भी एज वेल एज इन फॉरेन करेंसीज ऑल्सो, क्योंकि अगर किसी गुड्स को उन्होंने इंपोर्ट करना है तो इंपोर्ट करने में दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री नीड सम फॉरेन करेंसी, तो वो फॉरेन करेंसी भी दे विल गेट फ्रॉम IFCI. देन सब्सक्राइबिंग और अंडरराइटिंग द इशू ऑफ शेयर्स डिबेंचर्स बाय इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज के लिए शेयर्स को इशू करना, डिबेंचर्स को इशू करना थ्रू अंडरराइटर्स. सच इन्वेस्टमेंट कैन बी हेल्ड अप टू 7 ईयर, और ये जो इन्वेस्टमेंट है ये 7 ईयर तक की हो सकती है. फिर है गारंटिंग क्रेडिट परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स इंपोर्टेड एज वेल एज परचेज विद इन द कंट्री, ठीक है, और जो भी वो कैपिटल गुड्स खरीदना चाहते हैं, चाहे वो लैंड है, मशीनरी है, बिल्डिंग है, फॉर दैट पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट IFCI प्रोवाइड फंड टू देम. ओके, नेक्स्ट प्रोवाइडिंग असिस्टेंट अंडर द सॉफ्ट लोन स्कीम्स टू सेलेक्टेड इंडस्ट्रीज सच एज सीमेंट, कॉटन टेक्सटाइल, जूट, इंजीनियरिंग गुड्स एक्सेट्रा. सो IFCI स्पेशली प्रोविज़न प्रोवाइड करती है स्पेशल कुछ इंडस्ट्रीज़ को, ठीक है, जैसे सॉफ्ट लोन स्कीम्स हैं उनके लिए, सच एज सीमेंट, कॉटन टेक्सटाइल, जूट और इंजीनियरिंग गुड इंडस्ट्रीज़ हैं, so that they can improve themselves, not only they earn money for themselves as well as they contribute to betterment of the Indian economy also. Then providing technical and legal marketing and administrative assistance to any industrial concern for the promotion, management and expansion of the industrial concern. Then providing equipment imported or indigenous to the existing industrial concern or lease under its equipment leasing schemes. तो इक्विपमेंट लीजिंग स्कीम्स के तहत ऐसी जो मीडियम और लॉन्ग टर्म के जो बेसिस की इंडस्ट्रीज हैं उनको हेल्प प्रोवाइड करना है. Procuring and reselling equipment to eligible existing industrial concern in corporate or cooperative sectors, ठीक है, इनके जो प्रोडक्ट हैं, जो इनका ओल्ड मशीनरी है, उसको अगर रीसेल करना है, in that condition also IFCI help them. Then rendering merchant banking service to industrial concern, जो ये इंडस्ट्रियल कंसर्न होते हैं इनको बैंकिंग से रिलेटेड या ट्रेड से रिलेटेड कोई भी फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, IFCI ऑलवेज present. Okay, now next is Industrial Credit and Investment Corporation of India. This is called and a short abbreviation ICICI. So Industrial Credit and Investment Corporation of India was established as a joint stock company in the private sector in 1995. तो ये एक joint stock company है, गवर्नमेंट का ही one of the part along with the private sector. 1995 में ये establish की गई. Share capital was contributed by banks, insurance companies and foreign institutions including the World Bank. ठीक है, इसका जो शेयर कैपिटल है वो बैंक कंट्रीब्यूट करता है
ठीक है। उसके साथ साथ इंश्योरेंस कंपनीज और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस भी इसके अंदर आ जाते हैं, इंक्लूडिंग वर्ल्ड बैंक, ठीक है। इट्स मेजर शेयर होल्डर्स नाउ आर यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एंड इट्स सब्सिडरीज। तो ये इसके पार्ट हैं। दे टुगेदर होल्ड अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ICICI, ठीक है। Now main objectives of this corporation to assist in the formation, expansion, modernization of industrial unit in the private sector। जितने भी प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्रीज हैं उनको फॉर्मेट करने के लिए, बनाने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए, मॉडर्नाइज करने के लिए फंड प्रोवाइड करते हैं। टू स्टिमुलेट एंड प्रमोट द पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट कैपिटल बोथ इंडियन एंड फॉरेन इन सच इंडस्ट्रियल यूनिट। वो सारी इंडस्ट्रीज जो प्राइवेटली वर्क कर रही हैं, वो इंडियन हैं या फॉरेन हैं, वो या तो वो इंडिया में इस्टेब्लिश हैं या फॉरेन में इस्टेब्लिश हैं, किसी भी कहीं भी इस्टेब्लिश हैं, ऐसी इंडस्ट्रीज को ICICI हेल्प करता है। नेक्स्ट, टू फर्निश टेक्निकल एंड मैनेजरियल एड सो एज टू इंक्रीज प्रोडक्शन एंड एक्सपेंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। टेक्निकली और मैनेजरियली उनको एड प्रोवाइड किया जाता है, फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, ताकि उनका प्रोडक्शन हो सके, एक्सपेंड हो सके और वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट कर सके। नाउ फंक्शंस, इट प्रोवाइड्स मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन्स इन इंडिया एंड फॉरेन करेंसी फॉर इंपोर्टिंग कैपिटल इक्विपमेंट एंड टेक्निकल सर्विसेज। अब हम बात करते हैं ICICI के फंक्शंस की। तो ये मीडियम और लॉन्ग टर्म के लोन्स प्रोवाइड करती है, चाहे वो इंडियन करेंसी में हो या फॉरेन करेंसी में हो, ठीक है। अदर कैपिटल इक्विपमेंट, उसके साथ साथ टेक्निकल सर्विस भी प्रोवाइड करती हैं। लोन सेंशन जनरली गो टुवर्ड्स परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स लाइक लैंड, बिल्डिंग एंड मशीनरी। अगर किसी कंसर्न को लैंड, बिल्डिंग एंड मशीनरी परचेज करनी है तो उस कंडीशन में भी लोन सेंशन किया जाता है थ्रू ICICI। It subscribe to new issue of shares generally by underwriting them or directly subscribing the same। ये वो कंसर्न होती हैं जो शेयर्स इशू करवाती हैं किसी कंपनीज के और बैंक के थ्रू इन्वेस्टर्स को वो इन्वेस्टर्स तक पहुंचाती हैं। इन्वेस्टर्स का अमाउंट वो बैंक में डिपॉजिट करते हैं, देन दे गेट द अमाउंट फ्रॉम द बैंक एंड दे रेज देयर फंड। इट गारंटी लोन रेज फ्रॉम प्राइवेट सोर्स इंक्लूडिंग डिफर्ड पेमेंट, ठीक है। गारंटी देते हैं कि आपका जो भी लोन है प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट रिसोर्स के लिए, वो आपको मिलेगा। इट प्रोवाइड टेक्निकल एंड मैनेजरियल असिस्टेंट टू इंडस्ट्रियल यूनिट अलॉन्ग विद द कंसल्टेंसी सर्विस फॉर द न्यू प्रोजेक्ट। अगर कोई न्यू प्रोजेक्ट भी आप करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको कंसल्टेंसी प्रोवाइड की जाती है, कंसल्टेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। इट प्रोवाइड एसेट्स ऑन लीज टू इंडस्ट्रियल कंसर्न। जो इंडस्ट्रियल कंसर्न होते हैं, अगर उनको लीज में एसेट्स रिक्वायरमेंट है, दैट requirement also fulfilled by ICICI। In other words, assets are owned by ICICI but allowed to be used by industrial concern for a consideration called lease rent। लीज रेंट में उनको पर्टिकुलर इंडस्ट्री या पर्टिकुलर मशीनरी दे दी जाती है, एसेट्स दे दिया जाता है। इट प्रोवाइड्स मर्चेंट बैंकिंग सर्विस, ठीक है, फॉरेन से पेमेंट लेना और गुड्स को सप्लाई करना, दिस बैंकिंग सर्विस ऑल्सो provided ICICI। Rupees 5 lakh is the minimum amount sanctioned by it to single concern। किसी एक सिंगल कंसर्न का जो मिनिमम अमाउंट है वो 5 लाख होता है नॉर्मली, एंड इट डज नॉट गो बियॉन्ड द मैक्सिमम लिमिट ऑफ रुपीज 1 करोड़, और 1 करोड़ से वो ऊपर का नहीं होना चाहिए। तो ऐसी जो कंसर्न्स होती हैं उनको ICICI हेल्प प्रोवाइड करता है, ठीक है। नाउ नेशनल बैंक for agriculture and rural development, this is NABARD। So on 15th of December 1981, National Bank for Agriculture and Rural Development NABARD bill was passed in the parliament। ये bill passed हुआ which started functioning on 1st July 1982, ठीक है। NABARD was established according to the preamble to the act for providing credit for the promotion of, जो NABARD है स्पेशली हेल्पफुल है फॉर द एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्रीज, हैंडक्राफ्ट एंड अदर रूरल क्राफ्ट एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन रूरल एरियाज विद अ व्यू टू प्रमोटिंग IRDP एंड सिक्योरिंग प्रॉस्पेरिटी ऑफ रूरल एरियाज। तो स्पेशली जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड पीपल हैं, रूरल एरियाज में जो हैंडीक्राफ्ट पीपल्स हैं
हैंडलूम्स के सामान बनाते हैं, ठीक है, रॉ मटेरियल का यूज़ करके किसी गुड्स को बना रहे हैं, ठीक है, लाइक फिशरी है, एनी टेक्सटाइल डिजाइनिंग है, knitting है, okay. So all these sectors comes in rural areas and agriculture sector or in a small scale industries. So such types of work must be get facilities by National Bank of Agriculture and Rural Development, okay. So about the objectives and functions we will study in next video. Thank you and have a nice day.